Hello learners and welcome back to your channel e-learning. Kids, in the previous video we have learned about continent. What is continent and how many continents are there? In today in this video we will learn continent Asia. Last video में मैंने promise किया था कि we will separately take one continent and we will learn more about it. So we will start from Asia. So let's start the video and learn more about Asia. Asia. The word Asia is derived from the word Asu, which means the rising sun. Asia बना है word Asu से, जिसका मतलब होता है the rising sun. It is the largest continent as well as most populous continent of the world. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में in terms of geographical area wise भी and in population wise भी. Asia is the largest continent. 60% of world population lives in Asia. Now let's see its location, where it is located. As the first point I have tell you that Asia means the rising sun. So हमारा continent कहाँ located होगा? Sun कहाँ से rise करता है? East से. Then Asia located कहाँ होगा? East में. So in eastern hemisphere में. Let's see. It lies between 10 degrees south to 80 degree north latitude wise and extend from 25 degree east to 170 degree east. It lies between 10 degrees south to 80 degree north latitude wise. You can see equator. इक्वेटर के जस्ट नीचे से हमारा नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट होता है. इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. इक्वेटर के नीचे से 10 डिग्री से 10 डिग्री साउथ. इक्वेटर इट एट 0 डिग्री, उसके नीचे 10 डिग्री साउथ से एशिया स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड टिल 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाइज. ओके, एंड देन इन longitude wise it extends from 25 degree east. ये 25 you can see 30 डिग्री के और आगे से स्टार्ट होता है, मीन्स 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट. सो एशिया लाइज बिटवीन 10 degree south to 80 degree north latitude wise and longitude wise it extends from 25 degree east to 170 degree east. इक्वेटर के नीचे से स्टार्ट होगा साउथ से एंड एक्सटेंड करेगा नॉर्थ 80 डिग्री तक. ऑलमोस्ट एशिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. एशिया लाइज almost in northern hemisphere and in eastern hemisphere, northern and eastern hemisphere. Now let's see the boundaries of Asia. The continent is bounded by oceans on three sides. Arctic Ocean in the north. This is Arctic Ocean in the north. Pacific Ocean in east and Indian Ocean in south. So the continent is bounded by oceans on three sides. Arctic Ocean is on north, Pacific Ocean in the east, and Indian Ocean in the south. In the west, Asia is landlocked, means there is no oceans and sea. Asia and Europe are separated by Ural Mountains and Ural Sea. In the western side, Asia is separated from Europe by Ural Mountain. You can see here Ural Mountain. It separates Asia and Europe. Caspian Sea. This is Caspian Sea, which also separates Asia and Europe, and Ural River also separated by Asia from Europe. The Red Sea. Let's see the Red Sea. The Red Sea separates Asia from Africa. Africa and Asia are separated by Red Sea. जो Red Sea है वो
अफ्रीका को और एशिया को सेपरेट करती है. सो वेस्टर्न साइड में एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करती है रेड सी एंड सुएज कैनाल, एंड वेस्टर्न साइड में एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है यूरल माउंटेन एंड कैस्पियन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is Ural Mountain. See, it's how beautiful. Now, ईस्ट की वेस्ट की बात हो गई, नॉर्थ की बात हो गई, साउथ की बात हो गई. अब हम बात करते हैं ईस्ट की. इन नॉर्थ ईस्ट बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट. लेट्स सी, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है. बेरिंग सी एंड बेरिंग स्ट्रेट. यू कैन सी जो रेड कलर की इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके पास है बेरिंग स्ट्रेट, एंड उसके रेड लाइन के उस साइड है हमारा नॉर्थ अमेरिका. सो बेरिंग स्ट्रेट है जो नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को सेपरेट करता है. Now let's talk about superlatives of Asia. Superlatives of Asia. Let's talk about the highest point. एशिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, एंड इट इज 8,848 मीटर हाई. माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? इट लाइज ऑन नेपाल तिब्बत बॉर्डर. और आपको मालूम है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? सागर मठ. एंड हु इज द फर्स्ट डिसेंडर? In 1953, Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first ascender of Mount Everest. Now let's talk about the lowest point. The lowest point is Dead Sea. Dead Sea, it is below the sea level at the surface, and it is minus 396.8 meter deep. Why it is called Dead Sea? The sea is called dead because its high salinity prevents microscopic aquatic organism to grow. इसका पानी इतना ज़्यादा सलाइन है कि इसमें जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं एंड स्मॉल फिशेस दे आर अनेबल टू ग्रो. वो पहले ही डेड हो जाती है. दैट्स वाई इट नेम इज डेड सी. इट्स ए वेरी सॉल्टी वाटर एंड इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया. Now let's talk about coldest place. Coldest place is Verkhoyansk in Siberia, and it is not only the coldest place in Asia but in whole world. It is the coldest place, and यहाँ पे winters में जो temperature है वो होता है till -66.5 डिग्री सेल्सियस. -66 डिग्री तक गिर जाता है टेम्परेचर. ये आर्टिक सर्कल के पास में है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है. ये इसलिए ये कोल्डेस्ट प्लेस भी है वर्कोयांस्क. और वर्कोयांस्क इज इन साइबेरिया इन द रशिया. इट इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल्डेस्ट के बाद हॉटेस्ट प्लेस. हॉटेस्ट प्लेस इज जकोबाबाद इन सिंध, एंड यहाँ का टेम्परेचर जो समर्स में टेम्परेचर है इट राइजेज टिल 52.8 डिग्री सेल्सियस. जकोबाबाद इन सिंध इज द हॉटेस्ट प्लेस. World highest average rainfall, or you can say Asia's highest average rainfall is Masanram Cherrapunji. ये not only of Asia but of the world is also the highest average rainfall यहाँ पे होती है. एंड ये कहाँ पर है? यस, हमारे इंडिया में है. नेक्स्ट इज deepest freshwater lake. Deepest freshwater lake is Baikala Lake, and it is 1637 meter deep. It is 1637 meter. Baikal Lake. and ये कहाँ पर है? It lies in Serbia region of Russia. ये सर्बिया रीजन में है और रशिया में है. It is not only the deepest freshwater lake of Asia but also of world. It is a world deepest freshwater lake, Baikal Lake. Now let's talk about largest delta. The largest delta is Sundarban Delta. Sundarban Delta is the largest delta, not only of Asia again, it is the world largest delta.
और ये कौन कौन की रिवर्स से मिलके बनता है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, यांगजी एंड हांगू। ये जो रिवर्स है ये सारी रिवर्स में मिलके ये डेल्टा बनाती है, एंड इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। एंड highest plateau is Pamir, and it lies in Tibet. Now let's talk about the civilization of Asia. Asia has been the cradle of ancient civilization. क्रैडल समझते हैं ना? क्रैडल मीन्स होता है पालना। एशिया हैज़ बिन द क्रैडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। और कौन कौन से सिविलाइजेशन एशिया में रही है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। ये यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन ऑल्सो से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड को भी बहुत कुछ दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के फैक्ट्स की बात करेंगे। सो इन एशिया देयर आर टोटल 48 कंट्रीज। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। टोटल 48 कंट्रीज मिलके बनता है एशिया। देयर आर 3 more कंट्रीज जैसे ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, बट ये डिपेंड है चाइना पे, मीन्स यहाँ रूल करता है चाइना। सो यू कैंट से इट सेपरेट कंट्री, ये एक कंट्रोवर्सी है, इसलिए ये 3 more कंट्रीज है बट इट डिपेंडेंसी इज ऑन चाइना। Now the most populous country of Asia, or you can say in the world, is China, followed by India. First जो है चाइना है एंड सेकेंड पे हमारी इंडिया है। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री नॉट ओनली ऑफ एशिया बट ऑफ वर्ल्ड। अब 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो रशिया एंड टर्की, 2 एशियन कंट्रीज है रशिया एंड टर्की। इसका कुछ पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है एंड कुछ पार्ट एशिया कंट्री में आता है। So the 2 Asian country, Russia and Turkey, shares a part of territory with Europe, जो अपना कुछ पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट एज वेल एज यूरोप कॉन्टिनेंट्स में। डू यू नो अबाउट यूरेशिया? यूरेशिया क्या है? एशिया एंड यूरोप ये दोनों एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे लाइक करते हैं, मीन्स एशिया एंड यूरोप के बीच में कोई भी ओशंस या सी नहीं है, ये एक ही प्लेट पे हैं। इसलिए इस रीजन को, एशिया एंड यूरोप को, दोनों को मिला के हम बोलते हैं यूरेशिया। दे टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। These 2 continents form the longest stretch of land from west to east and are together known as Eurasia. Now let's talk about the largest city. Tokyo is the largest metropolitan city of Asia. Longest river of Asia is Yangtze River. The Yangtze River is the 3rd longest river in the world. Borneo is the 3rd largest island in the world and largest in Asia. एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है बॉर्नियो आइलैंड एंड ये इसका रैंक वर्ल्ड में 3rd है। Now I want to tell you a very interesting point about Borneo. Borneo एक ऐसा आइलैंड है जिसको 3 कंट्रीज ओन करती है। वो है मलेशिया, ब्रुनाई इन द नॉर्थ, वाइल इंडोनेशिया क्लेम्स द सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड। 3 कंट्रीज हैं जो बॉर्नियो आइलैंड पे अपना अपना क्लेम करती है। मलेशिया, ब्रुनाई नॉर्थ से क्लेम करती है, कुछ पार्ट्स मलेशिया क्लेम करता है, कुछ पार्ट ब्रुनाई क्लेम करता है। कहाँ से? नॉर्थ से। और इंडोनेशिया क्लेम करता है उसका सदर्न पार्ट, आइलैंड का सदर्न पार्ट क्लेम करता है इंडोनेशिया। सो ये आइलैंड 3 कंट्रीज ओन करती है। नेक्स्ट इज देयर आर 12 लैंडलॉक कंट्रीज इन एशिया। एशिया में 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज जिसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, कोई भी सी या ओशन नहीं है। कौन कौन सी देख लेते हैं? दे आर भूटान, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। सारे स्थान वाली जितनी कंट्रीज़ हैं दे ऑल आर लैंड लॉक्ड। So there are 12 landlocked countries in Asia. Next, Maldives is the smallest country of Asian continent. मालदीव एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री है एंड ये एक आइलैंड कंट्री है। और कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। मालदीव इज
situated in the Arabian Sea in the western side. It lies below India in the साउथ वेस्टर्न साइड मालदीव्स, और ये एशिया की सबसे छोटी कंट्री है ना. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडोनेशिया. इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिस जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है. इंडोनेशिया इज द ओनली कंट्री दैट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सिर्फ इंडोनेशिया ही है जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, और द रेस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट है एशिया का, वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ओनली इंडोनेशिया ऐसी एक कंट्री है जो सदर्न हेमिस्फीयर है, बाकी सारी कंट्रीज हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है. So kids, this was all about Asia. I have covered everything about Asia as much as I can. So I think you all have understand it, and once again, make learning fun and keep learning. Happy learning. Don't forget to like and share the video. Bye bye.